स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। मेरे चाचा के फ्रेंड के बेटे ने इसमें पैसा डाला था, सारा डूब गया। स्टॉक मार्केट तो जुआ है यार, जुआ। हाय एवरीवन, आई एम धनंजय राठौर, फाउंडर ऑफ मनीबॉल, एंड अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, then this video is for you. In next 5 minutes, we will give you a brief about basics of stock market. Are you ready? Let's begin. Now let's start from the beginning. What is stock market? Now consider it like a vegetable market. Just like in the vegetable market, there are a lot of vegetables and each vegetable has a price. Just like that, in the stock market, there are a lot of companies and against each company you see a price just like this. अब ये बताएं, क्या आप वेजिटेबल मार्केट जाके इंडिया के सारे टमाटर खरीद सकते हैं? Of course not. So what do you do is आप 1 किलो, 5 किलो या 10 किलो टमाटर खरीदते हैं. Just like this, in the stock market, you don't go and buy a complete company. You buy a small part of it, which is nothing but उसे कहते हैं स्टॉक्स. आप स्टॉक्स 1 खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं, 1000 खरीद सकते हैं या लाखों स्टॉक्स खरीद सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट. सो अब आप सोच रहे होंगे ये स्टॉक्स बिकते कहाँ हैं? सेम जैसे सब्जियां बिकती हैं सब्जी मंडी में, वैसे ही स्टॉक्स बिकते हैं स्टॉक्स की मंडी में, जिन्हें हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस. नाउ इन इंडिया देयर आर 2 बिग एक्सचेंजेस, BSE एंड NSE. BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नाउ NSE is the biggest stock exchange in India, biggest in terms of buyers and seller, whereas BSE is the oldest exchange in India. BSE के पास लगभग more than 5000 companies हैं, whereas NSE has got only 1600 companies. But remember, as both these stock exchanges are in India, तो NSE की जो 1600 कंपनियां हैं वो BSE में भी प्रेजेंट है. BSE has a very popular index which is called Sensex. Of course, नाम तो सुना होगा. Whereas NSE also have a very popular index which is called Nifty. Now Sensex is nothing but a pool of top 30 companies of India, whereas Nifty is a pool of top 50 companies of India. Now अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए. पहला, ये बने ही क्यों? Why is this needed? दूसरा, ये ऊपर जाए या नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है? या फिर जानना ही क्यों है ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे? Now let's begin by answering your first question. Why is this needed? Where City app ने बहुत ही precisely explain किया है. Let's say अगर हमें किसी सिटी के ट्रैफिक के बारे में जानना हो, then इंस्टेड कि हम पूरे सिटी में घूमें और हर जगह जाके देखें ट्रैफिक कैसा है, what do we do is we look at main 3 to 5 junctions in the city. अगर वहां भीड़ है तो समझ लो ट्रैफिक इज एट पीक. Now why only these 3 to 5? Because आपको सिटी के अंदर कहीं भी जाना हो, you will eventually have to pass those junctions. Now similarly, stock market कहाँ जा रहा है ये जानने के लिए, instead of looking at all the stocks, what do we do is we look at only top 30 or top 50 stocks, Sensex और Nifty. But how do we decide कि ये top 30 और top 50 है कैसे? Simple है, based on market capitalization और market cap या आप market value भी बोल सकते हैं. Now mathematically it is defined as total number of outstanding shares into price of per share. In simple words it is defined as उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है या वर्थ कितनी. नाउ मैथमेटिकली आप सारी कंपनीज का मार्केट कैप निकाल लो एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड जो पहले की टॉप 30 हुई दोज बिलोंग्स टू सेंसेक्स एंड टॉप 50 हुई दोज बिलोंग टू निफ्टी. अच्छा, अब ये जानना ही क्यों है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, क्या फर्क पड़ता है? नाउ दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सेंसेक्स एंड निफ्टी आर नथिंग बट अ रफ इंडिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Now, when I say rough indication of Indian economy, that means how is economy doing, good or bad. Now, Indian economy is nothing but a reflection of the life of common people like you and me. Now, this means whether you follow or don't follow the stock market, you are ultimately contributing in it. Now, let's understand this. अच्छा, tell me something.
क्या आपके पास व्हीकल है या आपकी फैमिली के पास कोई भी व्हीकल है? इफ़ यस, तो शायद आप उसमें पेट्रोल भी भराते होंगे। क्या आपके पास मोबाइल है? अगर है तो उसके अंदर मोबाइल कनेक्शन भी होगा, आप उसका रिचार्ज भी कराते होंगे। टेल मी समथिंग, क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में आटा, चावल, ब्रेड, आइसक्रीम ये सब खाते हैं? और डू यू यूज शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट एक्सेट्रा इन योर डे टू डे लाइफ? अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हैं तो आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ लेट्स कंसीडर दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आटा, एंड लेट्स से आप अपने घर में आशीर्वाद का आटा लाते हैं। आशीर्वाद आटा बिलोंग्स टू अ कंपनी कॉल्ड आईटीसी। अब आपके ही नहीं, बहुत सारे घर में आशीर्वाद आटा जाता होगा। दिस मीन्स इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। नाउ द मोमेंट यू बाय दिस आटा, दिस मीन्स आपने उस कंपनी की सेल्स बढ़ा दी है। नाउ जब बहुत सारे घर ये जाके आटा खरीदते हैं, दैट मीन्स उस कंपनी की बहुत सेल बढ़ जाती है। अगर सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो जाके उनका स्टॉक प्राइस बढ़ता है। Now if company stock price start going up and these companies belong to Sensex or Nifty, then eventually Sensex and Nifty start going up. तो Sensex and Nifty ऐसे ही ऊपर नहीं जाते, वो कब ऊपर जाते हैं? जब लोग ज़्यादा बाय करने लग जाते हैं, लोगों की कंजम्पशन पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। कंजम्पशन पावर बढ़ना मतलब लोग ज़्यादा स्पेंड करने लग गए। अब आप खुद बताएं, आप ज़्यादा स्पेंड कब करेंगे? जब आपको सैलरीज अच्छी मिल रही होंगी, जब आपको बोनसेस अच्छे मिल रहे होंगे, या जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। इन शॉर्ट, योर लाइफ स्टार्ट्स टू गेट बेटर। सो नेक्स्ट टाइम यू सी सेंसेक्स और निफ्टी इज गोइंग अप, this means your life is getting better, and when it's going down, this means your life is getting hard. So this sums up our first video, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए, और साथ में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। टिल देन, सी यू।